Jai Hind, we are on the forum of I'm Still Human, and there was a big demand from the subscriber of I Am Still Human that they wanted to know about the world, China, and the current challenges and the conflict which is going on. And in fact, in the entire spectrum, I could find nobody better than Major Sashi Asthana, whom I know personally and for whom I've got a deep respect for his sincerity, hard work, and integrity, and the catch on the international affairs as far as security is concerned. In fact, viewers will be very happy to know that he's written about 350 publications. He's been in the constant interview and articles that he's written at the international plane. If I take stock of it, Washington Post, Modern Diplomacy, European Union, Global Review Germany, Australia, Asian Times, Tuck Magazine, Korean Times, and I can keep counting. South China, Morning Post, Russian International Affairs, and so on. I'm very happy the way he's focused himself on the international aspect, and his background is also the same way that he's been with the United Nations. He's currently he's the chief instructor in USI New Delhi, and he's a defense expert, writer, and I respect his catch on the topic of international security matters and China. We are on this topic today, General Astana, that world, China, and the current challenges which the world is facing. Uh, in fact, firstly, a heartiest welcome to you, my Jahin. And I must share with the viewers that we also both are from Assam Regiment. Our greeting has always been in life, Tagda Rao. So, Tagda Rao and Jahin to you, General Astana. Tagda raho, sir. Tagda raho. And my sincere thanks for everybody inviting me and Mr. Vivek Mehra and the team of I Am Still Human. General Astana, we are seeing that at this moment of history, we got 15.6 million people who are infected with the COVID-19. We got 6.5 lakh who have died because of this challenge. And top of the list is United States, 4.1 million infected and 1.47 lakh who have died. It's a big challenge, and the whole world has risen against China on this aspect. In fact, I aim to focus on US, EU, Australia, Japan, and then come over closer to China, Taiwan, South China Sea, and Hong Kong. And lastly, look at the China internal situation at the moment. So, may I request you to please tell us that what are the security challenges as far as China is concerned from the US perspective? Okay. Now, if you see, initially the whole world knows that COVID-19 started off from Wuhan. Now, in Wuhan, that was the place which was locked down first in the world. So there is no dispute, and that is a statement of fact, irrespective of what is the theory of origin, etc., etc. But most important is the virus has started from there. The most affected countries, United States, Brazil, and India as of now, if we count the numbers. The global anger is against China. The anger is not because it originated, because it could be an accident also. No one knows. But the anger is because the Chinese regime and the CCP decided to hide it. And therefore, the timing for global response, that reduced. अभी उससे क्या फर्क पड़ा है? पूरे वर्ल्ड को रेस्पॉन्ड करने में टाइम कम हो गया. WHO को उन्होंने अपनी तरफ से मोटिवेट और इस्तेमाल करना शुरू किया. उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसको पेंडेमिक घोषित नहीं करने दिया. और ये सब होने से पूरे वर्ल्ड में आज जो नाराजगी है वो इसलिए है कि आपने क्यों छुपाया और आपने हमें क्यों तैयार नहीं करने दिया उस मुताबिक. दूसरी चीज जिसमें सबसे ज्यादा गुस्सा है आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो ये है कि एक तो आपने कोविड-19 की देन पूरी वर्ल्ड को दी और उसके बाद में आप उससे पहले पैसा कमाने लगे, क्योंकि आपके यहाँ पहले शुरू हुआ तो आप पहले निपट लिए उससे, वहां पे आपका रिकवर कर लिया आपने.
अब रिकवर करने के बाद में आपको पूरी दुनिया की मदद करनी चाहिए थी। मदद करने के बजाय आप सबसे पहले तो उनसे पैसा कमाने लगे। और दूसरी चीज, आपने ये सोचा कि शायद शायद पूरी दुनिया अभी डूबी हुई है, इस मुसीबत में है, और इसलिए वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, तो आप अतिक्रमण करना शुरू कर दिया आपने। इकोनॉमिक अतिक्रमण और टेरिटोरियल अतिक्रमण। टेरिटोरियल में उन्होंने जैसे लद्दाख में कार्रवाई शुरू कर दी, साउथ चाइना सी में कार्रवाई शुरू कर दी, और उसी मुताबिक ईस्ट चाइना सी में कार्रवाई शुरू कर दी। जहां जहां वो कर सकते थे उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इकोनॉमिकली जहां जहां लोगों से फायदा उठा सकते थे उठाना शुरू कर दिया। तो गुस्सा पूरे वर्ल्ड का इसलिए है, और इस गुस्से को ये अभी भी कंट्रोल में है। कारण क्या है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने चाइना को एक ग्लोबल सप्लाई चेन बना दिया था। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो जरूरी रोजमर्रा की चीजें हैं वो चीन में बनती थी और सस्ती बनती थी। तो उससे क्या हो गया कि अभी भी जो डिपेंडेंसी है, चाहे वो दवाई है, चाहे वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, चीन के ऊपर बनी हुई है। अब हुआ क्या है कि पूरा वर्ल्ड इस समय अभी भी शांत है। यूरोपियन यूनियन भी कुछ हद तक शांत है, क्योंकि सबको यह लगता है कि अचानक से ये सप्लाई चेन को अगर बंद कर दें तो अपने लोगों को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे पूरे वर्ल्ड में चेतना भी जाग रही है, सेल्फ रिलायंस भी बढ़ रहा है, और लोग भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुके हैं दवाइयां और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भारत ने सबसे वर्ल्ड में सबसे नंबर 2 में उभर के आ गया है आगे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में। तो अब लोगों का गुस्सा सामने सामने नजर आने लगा है, और लोग चाइना के से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, चाइना का इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहते हैं, चाइना को जवाब भी देना चाहते हैं, और चाइना को मेरे विचार से उसका जो अतिक्रमण है उसको रोकना भी चाहते हैं। हाँ, ठीक कहा जनरल अस्थाना आपने। देखिए 1973 में शुरू हुए रिलेशनशिप अच्छे होने चाइना और यूएस के, उसके बाद में आते आते पिछले साल तक तो ट्रेड वॉर था, कोल्ड वॉर था, और अभी तो कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो गया है। आज 24 जुलाई की जो स्थिति है उसमें स्टेट सेक्रेटरी माइक पैम्पियो ने कहा है कि चाइना यूएस ने चाइना को एक फ्रैंकस्टीन बनाया उनके उनके उनकी पॉलिसीज के मुताबिक। एक ये किसी देश के लिए ऐसा वर्ड यूज करना फ्रैंकस्टीन एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने माइक पैम्पियो ने ये भी कुछ दिन पहले कहा था कि चाइना की साउथ चाइना सी के अंदर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो अनलॉफुल है और अपने सब नेबर्स के साथ में बिलिजरेंट है। ये बहुत बड़े इल्जाम हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी जो यूएस ने 15 पॉइंट प्लान बनाया है जो चाइना की हर एक वनरेबिलिटीज को एड्रेस करता है, चाहे वो हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, सिंजियांग, हर एक वनरेबिलिटी को करता है। इसके ऊपर में आपके क्या विचार है? यूनाइटेड स्टेट्स ने जो भी अभी कार्रवाई की है मेरे विचार से बिल्कुल सही और तर्कसंगत है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने जिस तरीके से उनके ऊपर जो भी कहा है इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स का ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आया। आपको याद होगा 1978 में चीन भारत से हर एक इकोनॉमिक पैरामीटर में पीछे था। उस टाइम में डेंग जियाओपिंग ने इकोनॉमी को खोला और अमेरिका ने सबसे ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करा। अमेरिका क्यों इन्वेस्ट करना चाहता था? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हम बड़ी बड़ी चीजें बनाएंगे, छोटी चीजें इनको दे देते हैं और वो सस्ती बिकनी शुरू हो जाएंगी। और रशिया भी उनकी नजर में था कि जो उस समय यूएसएसआर है उससे उनका शीत युद्ध चल रहा था, तो उसमें चीन को थोड़ा फायदा हुआ। और चीन ने क्या करा कि पहले ये बोलते थे हम पीसफुली राइज करेंगे, तो उसको इन्होंने बोला कि हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है, जो उसमें इकोनॉमी शामिल है, मिलिट्री शामिल है और डिप्लोमेसी शामिल है, ये सबको इसको बढ़ाते हैं। और वो चुप रहा कि भाई जहां पे भी लड़ाई का माहौल है उधर तक रुक जाओ और उसके आगे तक तब तक कार्रवाई करते रहो। आगे आगे छोटा छोटा अतिक्रमण वो करता रहा। जैसे इंटरनली उसने शिनजियांग में अतिक्रमण किया, फिर तिब्बत वगैरह इन सब इलाकों में वो जो भी एक्शंस था, जिसको हम साइनिसाइजेशन बोलते हैं, हान चाइनीज को उनके डेमोग्राफी चेंज कर दी, उनका सोशल इंजीनियरिंग कर दी, ये सब करता रहा। अब जैसे जैसे उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ी, अब वो निकला बाहर की तरफ। अब साउथ चाइना सी में उसने क्या करा, जो कि माइक पोम्पियो ने बिल्कुल सही बताया है, कि जो फीचर्स होते हैं साउथ चाइना सी में, क्या है कि 5 देशों की
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप करती है, जो एक अनक्लॉज एक रूल है जिसके बारे में सभी जानते होंगे, जो लॉज ऑफ सी बोलते हैं जिसको। उसके अंदर क्या है, ये माना जाता है कि जो आपकी जो समुद्र तट का जो सबसे बाहरी कोना है उसके अंदर जितना पानी है वो आपका माना जाएगा, और वहां से 200 किलोमीटर की 200 जो नैनोमीटर है उसकी जो दूरी है वो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मानी जाएगी। अब चीन ने क्या बदमाशी करी, फीचर साउथ चाइना सी के अंदर जो चीन के जहां पे ओवरलैपिंग ईजेड है उस जगह पर उसने उसको मट्टी डाल के उसको टापू बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ये सिर्फ टापू के लिए लागू है ये जो रूल है। अब वो जब टापू बनाने लगा तो चीज तो गलत है, क्योंकि टापू की डेफिनेशन ये है कि शुरू से वो उसमें लोग रहने चाहिए, वो वहां पे शुरू में लोग रहते नहीं थे, वो तो रीफ है। तो अब क्या इन्होंने करा कि उस पर बदमाशी करके उसको पहले उन्होंने आइलैंड बनाने की कोशिश करी, जो कि पीसीए ने नहीं माना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो शाखा है पीसीए जिसने ये डिसीजन दिया, फिलीपींस कोर्ट के पास गया, वो भी नहीं माने। तो वो नहीं मानने के बावजूद चाइना ने बोला नहीं, वो इस रूल को मैं नहीं मानता, और उसके बाद वो अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। और अब वो अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि उन्होंने वियतनाम की वेसल को धक्का दे दिया और फिलीपींस की वेसल को धक्का दे दिया, इस तरीके से उन्होंने कार्रवाई शुरू की। अब यूनाइटेड स्टेट्स का क्या तरीका है, यूनाइटेड स्टेट्स को हमें इतना मानना पड़ेगा, चीन की जो डिफेंस बजट है पिछले 20 साल में यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस बजट 4 गुना ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने, चीन पहला देश नहीं है, यूएसएसआर को भी तोड़ दिया कोल्ड वॉर में, उसके बाद जर्मनी का जो हाल किया था ये भी पूरी वर्ल्ड को मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि चीन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर पूरे विश्व की डेमोक्रेसी एक साथ आ जाएं तो चीन का ये जो ज्यादा अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण पर उसे लगाम लगानी पड़ेगी। और चीन, जब मैं बोलता हूं तो मैं पूरे चीन के लोगों की बात नहीं कर रहा, लोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम सारी है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके साथ वो उनकी जो लीडरशिप है उनका एम्बिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शी जिनपिंग जब सत्ता में आए थे उन्होंने बोला था भाई 2049 तक हम वर्ल्ड पावर बनेंगे, सुपर पावर बनेंगे और मॉडर्न सोसाइटी बनेंगे। अब जब ये कोविड आया तब इन्होंने बोला कि नहीं यार, ये मौका है, पूरी विश्व जो है अभी तहस नहस हो रखा है, अब सबके ऊपर जोर डालो और उससे गलत फायदा उठाओ। तो कोविड का ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, उसके ऊपर सबको गुस्सा है। और उस गलत फायदा उठाने से इन्होंने कोशिश करी कि यार ये जो मेरे टारगेट थे पुराने, उनको मैं अभी क्यों ना निपटा दूं। तो अब उसको अभी निपटाने के चक्कर में उन्होंने हर जगह अतिक्रमण करना शुरू कर दिया अपनी तरफ से। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, हर तरीके से इकोनॉमिकली, ट्रेड वॉर पहले भी चल रही थी उसको और ज्यादा तेज कर दिया। उसके बाद में इनको ये पता है कि इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी करी है, अब इन्होंने उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर लगाम कसी है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर लगाम कसी है। उसके बाद में ये जो 18 पॉइंट्स है उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब आप देखिए इनके जो राजनयिक थे वो भी अपने एम्बेसी में जासूसी करते थे, क्योंकि एम्बेसी के अंदर क्या होता है कि जिस देश की एम्बेसी होती है दूसरा देश चाहे होस्ट कंट्री भी है लेकिन वो अंदर नहीं घुस सकता। तो वहां पे क्या करते थे, ये जो भी जासूस है उनको वहां से निकालो, उनसे जासूसी कराओ और उनको फिर अंदर छुपा लो। तो अब उन्होंने होस्टन में इनकी एम्बेसी बंद की है। जाहिर है कि पलट कार्रवाई होगी, लेकिन अमेरिका तैयार है पलट कार्रवाई के लिए, उन्हें पता है कि पलट कार्रवाई तो होनी है, तो वो चलेगा उस हिसाब से। उसके बाद उन्होंने जो अलायंसेस हैं उसको थोड़ा डेवलप करना शुरू करा। अब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेक्रेटरी ऑफ जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये बोला था कि जो भारत और यूएसए की जो डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये इस सदी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। उसी मुताबिक पोम्पियो ने भी बोला है कि ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अभी इन्होंने इनकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पास किया है, और उस एक्ट में इस बार, पहले उन्होंने सिर्फ ताइवान वगैरह को शामिल करते थे, इस बार उन्होंने लद्दाख को भी शामिल किया है और इंडिया को भी शामिल किया है। उसके बाद में क्या हुआ है कि अभी ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, मिलिट्री पोस्चरिंग भी यूएसए कर रहा है। साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए उन्होंने अपने बड़े बड़े जहाजी बेड़े भेज दिए हैं। उसी के साथ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की नेवी हैं, ऑस्ट्रेलिया की, हमारी, हम सब नेवी के साथ में। जनरल अस्थाना, आपने बहुत खूब कहा कि जो लोग हैं चाइना के वो अच्छे हैं, लेकिन जो सीसीपी है, जो उनकी
नियत और नीति है सीसीपी की, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, हमने तो पूरा दुनिया ने कोविड के टाइम में सुना है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन अभी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में डिप्लोमेटिक डिस्टेंसिंग चाइना की शुरू हो गई है। चाइना ने पहले शुरू की थी अपना सॉफ्ट पावर डायनेमिक्स, जिसके अंदर में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और न जाने कितने बिलियन उन्होंने यूएस डॉलर स्पेंड किए हैं सॉफ्ट पावर डायनेमिक्स के ऊपर में। लेकिन जब कोविड हुआ तो चाइना के डिप्लोमेट्स बन गए वुल्फ वॉरियर्स। उन्होंने जो अग्रेशन दिखाया, उन्होंने जो कन्फ्रंटिस्ट दिखाया, और जितने भी सोल्जर हैं पीएलए के, वो हर एक जगह, ना केवल ईस्ट लद्दाख में लेकिन विश्व के हर एक जगह में, साउथ चाइना सी में, सब जगह में एक कॉमन चीज थी, अग्रेसिव थे, प्रोवोकेटिव थे और डिविजनरी टैक्ट की तहत कर रहे थे। देखिए, जो आपने बताया कि जो ह्यूस्टन का जो कंसुलेट का था, उसका जवाब तो आज सुबह आ गया। अभी चाइना ने चेंगडू के अंदर में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है उसको बंद करने के लिए कहा है। ये तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स है, वॉर ऑफ डिसीजन है, ये तो अभी चल पड़ा है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर 2.0 है और उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। चाइना ने तो 3W की स्ट्रेटेजी है इनकी, कि मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर। मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि किस प्रकार ये डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क है जो पूरे वर्ल्ड का। देखिए, जब आज के दिन में अगर हम देखें तो 193 नेशन जो यूएन के हैं, अगर हम इसका जायजा लें तो उसमें से 130 से ज्यादा कोविड 19 का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 18 मई को, उसके वक्त में 14 देशों ने कहा कि ताइवान को ऑब्जर्वर की तरह वहां पे लाना चाहिए। जब हांगकांग के अंदर में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाए तो 27 देशों ने उसका अपोजिशन किया। और किस प्रकार से पूरा विश्व, जो चाइना की प्रॉक्सी है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कुछ हद तक नेपाल, और जो अभी ईरान का चैप्टर, इसको छोड़कर बाकी पूरा विश्व तो उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। तो ये डिप्लोमेटिक डिस्टेंसिंग में क्या चेंज है, इसके ऊपर में व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दिस? As far as diplomatic distancing is concerned, now we hear all these statements and they are indicating that everybody is doing diplomatic distancing. USA, we have heard, you have covered it adequately, and I don't think any more elaboration is required. But you see, European Union. Now, European Union has also given a statement that yes, they also want investigation. European Union initially was actually playing a neutral role to some extent. But now European Union is also absolutely clear. Now you see these statements coming from UK. UK initially accepted Huawei, but subsequently now UK has given up Huawei. So there is a very, very clear message from UK. And why that message has come? Because this National Security Act, when they passed it in the Hong Kong, that is again a violation of those conditions under which the Hong Kong was handed over to China. अब दूसरी चीज क्या हुई है यूके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट इन्होंने पास किया है उसके बारे में बताऊंगा। उसका एक क्लॉज है और वो क्लॉज ये कहता है कि अगर आप शी जिनपिंग को या सीसीपी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप वर्ल्ड में कहीं भी हैं, जिस दिन आप हांगकांग में जाएंगे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आज हम लोग हर रोज टीवी में फ्री स्पीच है हमारे यहाँ, हमारे देश में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग खुल के बोल सकते हैं जो हम चाहते हैं बोलना और जो हमारे दिल में है। तो इस फ्री स्पीच में जब अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं और इस लॉ के मुताबिक अगर हम टेक्निकली जाएं, तो जिस दिन हम हांगकांग में जाते हैं हमें रिसेप्शन में मेरे विचार से अरेस्ट कर देना चाहिए। अब चीन में मेरे विचार, मैं भी कई बार 5-6 बार मैं जब हुआ हूँ, आप तो कई बार और भी ज्यादा होके आए हैं चीन में। सवाल ये है कि जब हम गए थे कितना अच्छा लग रहा था वहां पे, बट जो इनका एम्बिशन जो इस तरीके से बढ़ा, अब उससे पूरे वर्ल्ड में जो डिप्लोमेटिकली ये लोग आइसोलेट हो रहे हैं। दूसरी डिप्लोमेसी में जो फुल वॉरियर डिप्लोमेसी की बहुत अच्छी बात कही आपने, इनके सारे के सारे जो ये डिप्लोमेट्स हैं वो जाके धमकियां देने लगे। ऑस्ट्रेलिया में धमकी दे दी कि भाई आप जो है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन मानेंगे तो हम आपका बाहरले नहीं लेंगे और हम आपको इकोनॉमिकली आइसोलेट करेंगे और आपकी नुकसान पहुंचाएंगे हम आपको। अब उसमें तो ऑस्ट्रेलिया नाराज हो गया और
हालांकि ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम इकोनॉमिक नुकसान सह लेंगे, लेकिन हम आपका अतिक्रमण नहीं सहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया भी अभी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो गया, पहले नहीं था। अब दूसरा, उसी मुताबिक नेक्स्ट डिप्लोमेसी जो है वो आप ये देखिए, एक बन गया है कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक, अभी एक बोलते हैं, एक बन रहा है कोएलिशन ऑफ एंग्री डेमोक्रेसीज अगेंस्ट चाइना। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, उसमें भी कई 8-9 देश जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद क्वाड में देखिए, ये भी एक कोएलिशन है। अब क्वाड में पहले शुरू में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक चल रहा था, अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है और वो क्वाड जो है फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर मीटिंग्स हुई है। अब इसके बाद में ये साफ नजर आ रहा है कि क्वाड को जो है वो जिसे बोलते हैं ना, वी नीड टू गिव टीथ टू क्वाड। सो अभी तक वो सिक्योरिटी अलायंस नहीं था, लेकिन जिस किस्म से हम मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस किस्म से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ रही है, अब ये क्वाड भी जो है डिप्लोमेटिक मिशन से हटके एक मेरे विचार से सिक्योरिटी मिशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये 4 नेवीज जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, ये एक साथ मिलके एक टक्कर दे सकती हैं चीन को। दूसरी चीज क्या हुई है डिप्लोमेटिकली, और डिप्लोमेटिक से थोड़ा सा मैं अभी स्ट्रेटेजिकली भी बोलूंगा, चीन को ये लगा कि यार हमने अभी काफी सारे हथियार वगैरह ले लिए हैं, साउथ चाइना सी में हमारा जो ये मिलिट्री एसेट्स हैं जिसे बोलना चाहिए, जो इनका एक ईस्टर्न सी बोर्ड है जहाँ पे समझ लीजिए आप साउथ चाइना सी भी आ जाता है, और इनके जो बीजिंग शिंगाई वाले जो समुद्री तट हैं वो भी सब आ जाते हैं। तो उस इलाके में इनको लगा कि यार हम बहुत स्ट्रांग है। तो अब उनको ये नहीं मालूम है, और ये उन्होंने मेरे विचार से अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में किया नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे टापुओं पे बेसिस बनाते चले गए, और इंडियन ओशियन में भी बेसिस बनाए, और सबमरीन खूब सारी बना दी इन्होंने। और उस सबमरीन से ये लोग सोचते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में जाके जासूसी भी कर सकते हैं और किसी को धमका भी सकते हैं। लेकिन नेवी की लड़ाई थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले नेवल सपोर्ट, जो नेवी की जो लड़ाई है उसमें बिना एयर सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो जहां पे ईस्टर्न सी बोर्ड में उनके जो हवाई जहाज हैं, जो उनके जमीन पे हवाई जहाज हैं, वो थोड़े से एक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ईस्टर्न सी बोर्ड से और साउथ चाइना सी से, तब चीन की नेवी अमेरिका की नेवी के सामने कुछ भी नहीं, और अगर बाकी नेवियां जुड़ जाएं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। अब अगर आप देखें इंडियन ओशियन में, चीन की सारी सप्लाई तो यहां से जाती है इंडियन ओशियन से। सीपीसी उन्होंने बना लिया, इफेक्टिव नहीं है। सीपीसी में चढ़ाई है पूरी, पाइपलाइन से ऑयल नहीं जाएगा। अभी भी बलूचिस जो हैं वो चलने नहीं देंगे उसको, सीपीसी को। तो उनको पता ही है कि इतनी भयानक सीपीसी से खत्म नहीं होने वाली ये बात। उसी मुताबिक जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बे ऑफ बंगाल से जाता है, वहां पे हमारा अंडमान निकोबार है। अब उनकी ये जो सप्लाई लाइन है ये काटी जा सकती है, और जिस दिन ये सप्लाई लाइन कटेगी उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आगे लड़ना पड़ेगा, और बाहर आके लड़ेंगे तो उनकी कमजोरी सामने सामने जाहिर हो जाएगी। तो डिप्लोमेटिकली मेरे विचार से इस तरीके से, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उनको इस तरीके से मेरे विचार से घेरने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और हम सब, और मेरे विचार से बाकी के जो मुल्क हैं। जनरल अस्थाना, मैं बताना चाहता हूँ, हम सब, हमारे जो श्रोता देख रहे हैं, कि हम दोनों असम रेजिमेंट से हैं। मैं 4th बटालियन से, आप 7th बटालियन से असम रेजिमेंट की, और हम ऑपवन में इकट्ठे थे। उसके बाद में स्टाफ कॉलेज भी इकट्ठा किया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है एक जीवन में एक ऑफिसर के। हम दोनों ही कुछ एक गिने चुने ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ताइवान के अंदर में कोर्स किया है, राइपाई में। और हमारे दोनों जो हमारी जो रेजिमेंट है उसका तो सदा ही जो ग्रीटिंग्स रही हैं, तगड़ा रो रही हैं। और जो हमारा वॉर चार्ज है वो है राइनो चार्ज, वॉर क्राई। और असम विक्रम में हम बिलीव करते हैं यूनिक वैलर के अंदर में, और बदलू राम हमारा एक आदर्श है हमारी रेजिमेंट का। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने पूरा जीवन में नॉर्थ ईस्ट के साथ में काम किया है, नॉर्थ ईस्ट के जवानों के साथ में रहे हैं। और आपने ये बहुत अच्छा कहा कि जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक डिस्टेंसिंग हुई है, जिस तरह एक स्ट्रैटेजिक पोलराइजेशन हुई है, एक जो चाइना एक थ्रेट और चैलेंज बन के उभरा है। देखिए, अगर आप आज के स्थिति में देखें तो चाइना की 14 देशों के साथ में लैंड बाउंड्री है, 12 के साथ में उन्होंने ऐसे मतलब अलग अलग तरीकों से
बॉर्डर सोल्यूशन ढूंढा है, लेकिन 2 भारत और भूटान के साथ में अभी तक बॉर्डर सोल्यूशन नहीं आया है। जो साउथ चाइना सी है वहां पे 8 मैरीटाइम देश हैं जिनके साथ में उसकी मैरीटाइम बाउंड्री की प्रॉब्लम है। वो 9 डैश लाइन के ऊपर में फोकस करता है। और अभी जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर में चाइना ने जुलाई के पहले हफ्ते में अपना नेवल ड्रिल शुरू की। यूएस ने अपने जो स्ट्राइक कैरियर हैं, यूएसएसआर के एयरक्राफ्ट कैरियर, उनको वहां उतारा। टेम्परेचर बढ़ गया है, ऑस्ट्रेलियन नेवी भी वहां पर आ गई है। और ये जो आपने बताया क्वाड्स के बारे में, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये एक नया ग्रुप बन गया है और स्थिति काफी बदल गई है। अगर आप साउथ चाइना सी को देखें तो पता लगता है कि यूएस की जो एरियल रेकी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग है वो बहुत बढ़ गई है। और स्पेशली जो ईस्ट कोस्ट है, गुआंगडोंग का इलाका है, जहां पर चाइना का ईस्टर्न थिएटर है, उनके जो अभी नया थिएटर है ईस्ट में बनाया था, अभी जो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार एस्केलेशन बढ़ी है एक्टिविटीज की, इसमें कभी भी मिस कैलकुलेशन हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्वाड्स क्या है और साउथ चाइना सी में किस प्रकार एक्टिविटीज बढ़ी हैं और आपकी एनालिसिस क्या है इस स्थिति को लेकर। देखिए, क्वाड एक ग्रुपिंग के मुताबिक शुरू हुई थी कि जब हमने ये सोचा था कि पहले जापान ने इसको शुरू किया था, ये इनिशिएटिव को, और ये सोचा गया था कि जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं, जैसे हम ये चारों देश जो अपने आपने भी नाम लिए, चारों डेमोक्रेसी हैं और चारों वो देश हैं जो इंडो पैसिफिक में अच्छी जिनकी साख है और जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल देश माने जाते हैं। अभी इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिला के ये दोनों अगर देखा जाए तो एक ही वाटर बॉडी है। बीच में जो कुछ एक चैनल्स हैं जैसे मलाका स्ट्रेट है और इनसे ये जुड़ जाती हैं, तो एक तरीके से ये सेम पैसेज है, तो पूरा एक ही वाटर बॉडी माना जाएगा इनको। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हम लोगों का प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए। अगर फ्री फ्लो ऑफ थॉट हो तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड भी होगा। तो इस भावना से इसको शुरू किया गया था कि फ्री फ्लो, सीमलेस ट्रेड होना चाहिए इस इलाके में और सीमलेस इंटरेक्शन होना चाहिए और बिना किसी रुकावट के आपस में एक दूसरे से मिलाप हो, ट्रेड हो, लोग मिले, लोग आए जाएं, इस भावना से इसको शुरू किया गया था। अब क्या हुआ कि जब चीन ने अतिक्रमण शुरू किया साउथ चाइना सी, अब साउथ चाइना सी में जैसा कि मैंने बताया कि ओवरलैप करता है 5 देशों की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 किलोमीटर की जोन को माना जाता है, जहां पे आपका टापू की बाहरी सतह है या आपके देश की बाहरी सतह है, जहां पे आपका समुद्र की बाउंड्री लगती है। अब वो 200 सबके अगर गिने जाए तो वो ओवरलैप करते हैं। अब सही चीज क्या है कि भाई क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं तो ये ग्लोबल कॉमन माना जाएगा पूरा साउथ चाइना सी, ये किसी एक देश की धरोहर नहीं। चीन का कहना कुछ और, चीन बोलता है कि क्योंकि मेरी बोट वहां पे जाती थी और क्विंग डायनेस्टी के टाइम में जाती थी इसलिए वो मेरा है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि उस लॉजिक के मुताबिक तो मेरे विचार से अगर हम बोलना शुरू करें कि पाकिस्तान भी हमारा है और बांग्लादेश भी हमारा है तो लोग बोलेंगे यार इनका ये क्या बात कर रहे हैं, इनका ये कोई आज के जमाने की बात थोड़ी है, ये तो पता नहीं क्या सदियों के जमाने की बात कर रहे हैं और ये कोई तर्कसंगत तो है नहीं। तो वो बात किसी को भी तर्कसंगत नहीं लगी और इसीलिए उनके खिलाफ डिसीजन भी आया। दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से किसी को टापू नहीं बना सकते, आप फीचर को जो है उसको टापू बनाने की कोशिश करें वो भी नहीं हो सकता। तो दोनों ही बातों में, चीजों में, साउथ चाइना सी में चीन का कोई पक्ष सही नहीं है और सिर्फ एक तरीके से जिसे हिंदी में कहा जाए दादागिरी चल रही है। अब उस दादागिरी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में चलो ठीक है यार, आप वहां पर आ गए, आप इंटरनेशनल जगह है। अब अगर आप उसको एडीआईजेड बना दें, एडीआईजेड क्या होता है कि अगर आप बोले जी इधर से हवाई जहाज नहीं चलेंगे और देशों के, तो फिर तो मुसीबत है। अब साउथ चाइना सी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि वो जिसे बोलते हैं ग्लोबल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लोबल स्लॉग, उसमें देश पूरे वर्ल्ड का तकरीबन 40 से ज्यादा % सी ट्रैफिक जाता है।
जापान का तकरीबन 80% ट्रैफिक जाता है, चीन का तकरीबन 60% ऑयल जाता है, भारत का भी कम से कम 50% जो ट्रेड ट्रैफिक है उस चैनल से जाता है। तो उसको कैसे रोक सकते हैं? और उसको अगर रोकेंगे तो पूरा वर्ल्ड तो कोई चांस ही नहीं है कि रिएक्ट ना करे। तो इसलिए क्या हो रहा है कि अब अमेरिका जो है वो अपने जहाजी बेड़े भेज रहा है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, ये इंटरनेशनल वाटर है, आप चाहे कुछ भी कहो, मैं तो इस इलाके में जाऊंगा। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि जब दोनों देशों के युद्ध प्रोत इस इलाके में घूम रहे हैं तो एक्सीडेंटल ट्रिगर हो सकता है। एक्सीडेंटल ट्रिगर से मान लो एक किसी ने फायर कर दिया या डेंजरसली क्लोज आ गए, फायरिंग शुरू हो गई, तो इस किस्म का हो सकता है। इंडोनेशिया की में फायर शुरू होने ही वाला था, चीन की बोट बहुत नजदीक आ गई थी, इंडोनेशिया ने बोला नहीं हम नहीं आने देंगे, वो तैयार हो गए थे फायर करने के लिए। तो इस तरीके से ये हो सकता है। तो अब अगर ऐसा होता है तो मेरे विचार से चीन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सारी नेवी इस समय चार्ज अप हो रखी है। दूसरी बात यह है कि ताइवान की अगर आप बात करें, ताइवान को चीन हमेशा धमकाता रहा है। और ताइवान के लिए मैं बिल्कुल सही शब्द आपने जो इस्तेमाल किया था जब आप बात कर रहे थे कि ताइवान बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है, तगड़ा रहोगा। उन्होंने सचमुच एक चीज दिखाई है। सबसे पहले पैंडेमिक उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसके डील किया। उसके बाद में जो डीपीपी की सरकार है वहां पर उन्होंने साफ बता दिया भैया हम एक देश हैं और हम एक डेमोक्रेटिक देश है और हम ये अतिक्रमण नहीं सहेंगे, और हमें इसमें कभी कोई हमारे दिमाग में डाउट नहीं। तीसरी बात ये है कि जब ये जितनी बार इन्होंने धमकी दी, मेरे विचार से जब से शी जिनपिंग आए हैं वो हर साल ही धमकी दे देते हैं कि भाई मैं फोर्स इस्तेमाल करके इसको करूंगा। और इन्होंने अभी मिलिट्री ड्रिल शुरू की है, और ऐसा नहीं है, आपने भी देखा मैंने भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, उनके पास भी आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, और वो भी इस चीज के लिए तैयार हैं कि अगर एम्फीबियस असॉल्ट हमारे ऊपर आएगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, तो वो उसकी तैयारी करके बैठे हैं। तीसरी चीज क्या है, एक चीन के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, मेजर जनरल हैं, खुद के चीन के पीएलए के, उन्होंने भी लिखा है और मैंने भी लिखा है, बिल्कुल सेम चीज लिखी है हम दोनों ने। और उसमें क्या लिखा है कि चीन के लिए ताइवान के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करना खुदकुशी के मुताबिक होगा, क्योंकि कई कारण हैं। ताइवान की शादियां वहां हो रखी हैं, ताइवान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 30% जीडीपी, अभी मैं मुल्क ही कहूंगा उनको, 30% से ज्यादा उनका, 30 बिलियन डॉलर उनका ट्रेड सरप्लस है चीन के ऊपर। उनकी पर कैपिटा जीडीपी 5 गुना है चीन से ज्यादा। तो इतना ज्यादा विकसित देश है। एक वक्त पे तो 60% कंप्यूटर के हार्डवेयर ताइवान में बनते थे, अभी औरों ने भी बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है ताइवान। तो ऐसे में चीन के लिए बहुत ही और दूसरी चीज क्या है कि उसमें भी 96% हान है। और चीन, ताइवान का यह कहना है, एक 1933 में कन्वेंशन साइन हुआ था जिसमें डिफाइन किया गया था एक नेशन क्या है। उस नेशन के 4-5 डेफिनेशन होती हैं, और वो ताइवान जो है वो सारी के सारी डेफिनेशन पूरी करता है। उसका एक टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी एक सरकार होनी चाहिए, उसका अपना एक सिस्टम होना चाहिए, और बाकी भी डेफिनेशन हैं उनकी। हाँ, 2/3 लोगों से ज्यादा तो उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में जितने 2/3 कंट्रीज हैं, और वर्ल्ड में 75% कंट्रीज से उनकी ज्यादा टेरिटरी है। तो उनको क्यों देश नहीं माना चाहिए, क्यों उनको डब्ल्यूएचओ में पूछना चाहिए? तो ये सब जनरल अस्थाना, जो मैंने शुरू में कहा था 193 यूएन के जो नेशन है उसमें ताइवान शामिल नहीं है, उसमें द नेम इज नॉट देयर। और दूसरा, जिस प्रकार अभी स्थिति बढ़ रही है, जो चाइना का वन चाइना प्रिंसिपल था उसकी काफी धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए, ताइवान हम दोनों गए हैं और बहुत करीब से देखा है उनको, और मैं तो ये कहूंगा कि जो 5G का सोल्यूशन है ताइवान के पास में है, टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन ताइवान के पास में है, जिस प्रकार से वो डेमोक्रेसी चला रहे हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिस प्रकार से उन्होंने कोविड के क्षेत्र के अंदर में बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट ताइवान एक ऐसा देश है who told the world first. They said that what China is saying that it is not human to human is wrong. They are the one who pointed it out to WHO. And both of us, we have studied PLA and PRC there in Taiwan. So from this we move on to the next topic, Japan.
जापान वाज द फर्स्ट नेशन जिन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स विल मूव आउट ऑफ चाइना, and they said they had given $2 billion US for that process. In fact, they are important part of the Quads. Also, very importantly, there is a change of perception in the Japan. पहले वो एयर डिफेंस की बात करते थे, मिसाइल डिफेंस की बात करते थे. Now they have started thinking about offensive content of this air from that point of view. So ऐसा लग रहा है कि उनकी परसेप्शन में, उनकी स्ट्रेटजी में, उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. क्योंकि जो चाइना और जापान का जो इक्वेशन है वो तो बहुत ही अलग किस्म का है. जब चाइना बोलता है 1 century of humiliation, तो उसके अंदर में काफी कंपोनेंट जापान का भी जाता है. तो हाउ डू यू लुक एट दिस चेंज which is there in the Japan strategy and perceptions? Japan ka, as you rightly said, that when China talks of century of humiliation, जापान ने चाइना के ऊपर कई बार अटैक किया है. जापान एक बहुत बड़ी समुद्री पावर हुआ करती थी अपने टाइम, और हम सब ने मिलिट्री हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि किस तरीके से जापान के शिप जो हैं, वो जापान की इतनी हिम्मत थी उस समय में जिसने पर्ल हार्बर में अटैक कर दिया था अमेरिका के ऊपर. तो इतनी बड़ी पावर हुआ करती थी. अब जापान ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उनके ऊपर एटम बम गिराया गया और अमेरिका ने उनको प्रॉमिस किया कि अब हम इसको बिल्डअप करेंगे आपकी कंट्री को, लेकिन आप डिफेंस जो है वो आपका हम देखेंगे, आप अपना डिफेंस डेवलप ना कीजिए, ऐसा करके उन्होंने बातचीत करी. तो जापान ने उसको माना. अब धीरे धीरे क्या होता गया, अब जैसे आपने बताया अभी इंटरनेशनल सिचुएशन बदल रही है. सबसे पहले चीन ईस्ट चाइना सी में उनकी टेरिटरी को हड़पना चाह रहा है, जो सिंकाकू आइलैंड है जिसको जापान हमेशा से उनके पास रहे हैं. दूसरी मुसीबत क्या हुई है कि नॉर्थ कोरिया ने भी कई सारी मिसाइल दागनी शुरू करी, और वो भी इस चक्कर में था कि मैं जापान को डरा दूं. और जापान को अभी ये लगा, और जब बीच में एक बार शुरू में जब प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने बोला था भाई अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी जब लेके आए थे, तब थोड़ा सा ये बीच में सिचुएशन ये लग रही थी कि भाई इस समय मेरे को कि हो जापान को भी ये लगा कि शायद अभी मुझे भी अपना खुद डिफेंस अपने आप ही देखना पड़े शायद. तो धीरे धीरे ये सोच बड़ी आ गई कि नहीं, हमें अपना डिफेंस खुद तैयार करना चाहिए. और उसमें जो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर अबे हैं, उनका काफी बड़ा योगदान है, और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अब हम एडवांस्ड हथियार खरीदना शुरू करें. दूसरी चीज ये है कि जापान के अंदर ये डिबेट होती रहती है. जब ये नॉर्थ कोरिया ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ रहा था, या मिसाइल्स छोड़ रहा था, न्यूक्लियर तो अभी नहीं बोलेंगे हम क्योंकि उनके टेस्ट के ऊपर डाउट ही रहता है हमेशा. तो उसके बाद में जब उस टाइम में एक बातचीत चली थी ना जापान में कि नहीं, अभी हमें भी न्यूक्लियर कंट्री हो जाना चाहिए. और ये जाहिर है कि अगर चीन और नॉर्थ कोरिया थोड़ा और दबाव डालेंगे तो एक वक्त आएगा जब जापान न्यूक्लियर बम बना लेगा, क्योंकि जापान के पास में टेक्नोलॉजी भी है और जापान इस सक्षम है वो करने के लिए. बस ये है कि वो अभी तक उन्होंने पॉलिसी वर्ल्ड की मानी है, अमेरिका की बात मानी है, और वो न्यूक्लियर नहीं बने हैं. लेकिन अगर ये ज्यादा उन्हें दबाया गया तो ये ऐसा होगा. अब इस तरीके से जापान की दूसरी बात ये आप देखें, जापान की इकोनॉमी भी काफी हद तक चीन के साथ, जापान ने भी बहुत इन्वेस्ट किया चीन, इसलिए उनको डीकपल होने में भी दिक्कत हो रही थी, अलग होने में भी दिक्कत हो रही थी, इकोनॉमी को थोड़ा अलग. लेकिन अब जापान ने मन बना लिया है. अब उन्होंने कहा है कि जो भी मेरी कंपनी चीन से बाहर निकलेगी उसको मैं इंसेंटिव दूंगा. जो आपने $2 बिलियन की बात करी, ये सब उन कंपनियों के लिए है कि भाई जो अगर आपका नुकसान होता है जब आप चीन से बाहर आते हैं, उस नुकसान की मैं भरपाई करूंगा. तो उस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं. उसी मुताबिक उनकी नेवी, जो नेवी है, नेवल पावर, वो पहले भी रहे हैं, उनको बड़ी नेवल पावर रहे हैं वो. इनफैक्ट वर्ल्ड में वो सेकंड थर्ड वर्ल्ड नेवल पावर हुआ करते थे. तो वो एक पोटेंशियल है उनके अंदर. तो वो भी मेरे विचार. Now let's get into the China. Looking inward from China, one wants to analyze that what is the Chinese political logic. जो चाइना की स्ट्रेटजी उभर के आई है अब इस सिचुएशन में, क्या स्ट्रेटजी है?
Is there an existential threat to them? Is it a massive internal stability problem? सीसीपी और शी जिनपिंग का क्या पूरा खेल खत्म होने वाला है? उनकी कैलकुलेशन क्या है, मिस कैलकुलेशन क्या है, क्यों वो निकल पड़े हैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ के ऊपर में? देखिए, मैंने 15 जून की जो रात थी गलवान में, जो चाइना ने एक हिमालयन ब्लंडर किया था, एक डिजास्टर, एक बहुत बड़ी गलती की थी, उसके बाद में मैंने एनालाइज किया तो मेरे को क्लियर चाइना की पीएलए की 12 लाइज, झूठ, प्रोपेगेंडा समझ आया। जब मैंने और एनालाइज किया तो मेरे को चाइना के 12 वर्नरेबिलिटीज की और सूझबूझ आई। लेकिन सबसे बड़ी जो वर्नरेबिलिटी है चाइना की, वो है इंटरनल स्टेबिलिटी। अगर आप देखें तिब्बत, सिंजियांग, मंचूरिया, इनर मंगोलिया, तो ये सब चाइना ने हड़पे हुए इलाके हैं। जिस प्रकार इसने तिब्बत को 1950 से हड़पा हुआ है, अनेक्स किया गया है, और जिस प्रकार एलएसी में भी दिखाई देता है, बॉर्डर में भी दिखाई देता है, that he's always been trying to creep, scribble and annex territory। ये जो विस्तारवाद की बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये पूरा दुनिया में इसने लगाया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसका इंटरनल स्टेबिलिटी का है। व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दिस एस्पेक्ट? हाँ, चीन की इंटरनल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो एक जो रूल करती है, रूल बाय सर्वेलेंस जिसे बोलते हैं। नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। नागरिक को जो शी जिनपिंग अपने आप को कोर लीडर मानते हैं, जो कोर होता है, आप उससे डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप शी जिनपिंग से डिसएग्री करते हैं तो आपको जेल में होना पड़ेगा। जुडिशरी नाम की वहां कोई चीज नहीं है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिसाइड करती है कि ये आदमी अभी गुम हो जाना चाहिए, तो वो आदमी गुम हो जाएगा। तो ये तो इनकी सोशल हालत है। दूसरी मुसीबत क्या है? चीन में एजुकेशन काफी बड़ी है, लोगों ने बाहर जाके भी काफी पढ़ाई की है। आज की डेट में मैक्सिमम पीएचडी चीन में है, और इस पढ़ी लिखी सोसाइटी को अगर आप देखें तो इसको आप सर्वेलेंस से दबा के कंट्रोल करके एक पॉइंट तक रख सकते हैं। अब चीन में क्या हुआ है कि ये लोग सह रहे हैं ये सब? वो इसलिए सह रहे थे अभी तक क्योंकि चीन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा था और इनको अच्छा पैसा मिल रहा था, अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही थी, तो ये बोल रहे थे चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगर शी जिनपिंग को गाली नहीं देनी है तो नहीं देनी है, कोई बात नहीं। अगर यही रूल है, रूल बेस उनका, सीसीपी की बात मान लेते हैं, हमारी लाइफ तो चल ही रही है। और एक चीज इन्होंने और अच्छी करी थी उस समय तक कि पर्सनल लाइफ में ये लोग ज्यादा इंटरफियर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शी जिनपिंग की जो एम्बिशन है वो बढ़ता गया और सीसीपी का एम्बिशन बढ़ता गया, इन्होंने सबसे पहले एक एंटी करप्शन ड्राइव शुरू किया। सबको बहुत अच्छा लगा, बड़े बड़े लोग जो हैं वो जेलों में चले गए जिन्होंने करप्शन किया था। लेकिन उसके साथ साथ शी जिनपिंग ने क्या करा कि जितने इनके खिलाफ खड़े होने वाले लोग थे या भविष्य में खड़े होने वाले लोग थे, पोटेंशियल थ्रेट जो थे शी जिनपिंग को, उनको भी बंद कर दिया। तो अब गुट शुरू हो गए हैं। सीसीपी में अभी 3 गुट है। एक गुट शी जिनपिंग वाला है, एक गुट है जो कम्युनिस्ट पार्टी का है, वो जो शंघाई वाले जो पुराने लीडर हैं उनका ग्रुप है, एक ग्रुप है जो बीजिंग वाले पुराने लीडर हैं उनका ग्रुप है। अब 3 ग्रुप तो इनके अंदर ही बन गए हैं सीसीपी के अंदर। अब शी जिनपिंग को थोड़ी सी परेशानी हुई। दूसरी परेशानी थी पीएलए के साथ। अब अगर आप इतिहास देखें चीन का, तो चीन में पहले माओ ने पीपल आर्मी बनाई, वो फिर पीपल्स आर्मी बनी, उसके बाद वो पीएलए बनी, और पीएलए के बाद पीआरसी आया। तो पीएलए को लगता है कि नहीं, मैं मालिक हूं यार, मैंने बनाया देश, और सीसीपी को लगता है कि नहीं, ये पीएलए का टास्क ये है कि ये तो मेरी आर्मी है, देश की आर्मी नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों आर्मी में, इंडियन आर्मी में और पीएलए में। तो वो पॉलिटिकल आर्मी है, वो देश की आर्मी नहीं है। तो अब हुआ क्या कि पहले पीएलए के बहुत सारे लोग हुआ करते थे पॉलिट ब्यूरो में। शी जिनपिंग ने ज्यादा से ज्यादा उनको रिप्लेस करने की कोशिश करी, सिविलियंस लाने शुरू करे, उससे पीएलए के लोग भी थोड़े नाराज हुए, तो इंटरनल डिसेंट शुरू हो गया। तो अब आप देखिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें डिसेंट हो गया, जो पूंजीवादी थे उनके ऊपर भी लगाम कसी उसने कि भाई नहीं, आप पार्टी को ज्यादा दीजिए। करप्शन बहुत है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर बहुत करप्शन है, अभी भी है,
जो जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बचे हुए हैं। अब ये क्या है कि जो शी जिनपिंग से की गलत निगाह में है वो जेल में जाएगा, वो करप्ट है, और जो उसकी गलत निगाह में नहीं है, जो उसको यस सर बोल रहा है, वो करप्ट नहीं है। ये वहां पे चल रहा है। अब क्या हो गया कि इतनी दबी हुई जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में अब आपने हांगकांग को भी शामिल कर लिया। अब हांगकांग को जब आपने ये एक्ट पास करा तो साफ नजर आ रहा है अभी सबको, जो मेनलैंड चाइना है उनको भी नजर आ रहा है कि देखो ये डेमोक्रेसी की हालत थी और ये अभी इन्होंने गदर किया है। और क्यों ये लोग इतना तड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि ये हम किस आजादी से हम महरूम थे, और इन्होंने जब ये बाहर गए तब इन्होंने वो भी देखा। तो ये मेरे विचार से इनकी काफी वो है। अब अंदर की जो प्रॉब्लम है, जिसे मैं बोलता हूँ एक बॉइलिंग पॉट है, और ये प्रेशर कुकर है जिसका फ्यूज वो नॉब कभी भी उड़ सकता है। आपने बहुत सुंदर कहा कि ये एक प्रेशर कुकर की तरह है, अंदर में क्या पक रहा है, क्या टेम्परेचर, क्या क्या उथल पुथल है, क्या टर्बुलेंस है, ये तो चाइना खुद ही जानता है और बहुत डरा हुआ है इस वक्त में। देखिए जो पीआरसी और पीएलए है, इनका अत्याचार पूरा विश्व ने देखा था जब 1998 में टाइनमेन स्क्वायर के अंदर में प्रोटेस्टर के ऊपर में टैंक लेके चढ़ गए थे। आपने अभी देखा है कि पीएलए के 100 से ज्यादा सोल्जर मरे हैं गलवान के अंदर में, लेकिन उन्होंने एक का भी स्वीकारा नहीं है। और हमारी तरफ में जो शहीद थे, जो वीर योद्धा थे, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर साहब शामिल है, उनको किस सम्मान के साथ में उनके पार्थिव शरीर को पूरे राष्ट्र ने मिलकर एक परिवार की तरह क्या सम्मान दिया, और जो प्राणों की आहुति दी थी उसको क्या मान सम्मान और किस प्रकार से भारत की प्रथा के मुताबिक किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो हांगकांग जो पहले चल रहा था कि वन कंट्री टू सिस्टम, उसकी कैसे धज्जियां उठाई हैं चाइना ने। और ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब चाइना ने वन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था 1990 में, तो 1 मिलियन प्रेग्नेंट लेडीज को का फोएटिस को उन्होंने मारा था, कत्ल किया था उन्होंने। और इतने अत्याचार किए हैं पीआरसी और पीएलए ने कि उनकी जनता सब जानती है, ऐसा नहीं कि नहीं जानती है। लेकिन देखिए बात करने को बहुत है, लेकिन मैं अभी इस इंटरव्यू, इस इंटरेक्शन के उस अध्याय में पहुंच गया हूं, आखिरी पथ पर। मैं आपसे कुछ एक सवाल करूंगा, ये थोड़ा रैपिड राउंड होगा। आप सिर्फ 2-3 ही शॉर्ट जवाब दीजिए, और ये जो आपके जवाब हैं ये मैसेज के रूप में होंगे। आपका क्या मैसेज है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, जनरल अस्थाना? अतिक्रमण बंद करें, क्योंकि अतिक्रमण पूरा विश्व सहेगा नहीं। पूरा विश्व आपसे नाराज है। आप जो सोच रहे थे कि आपको फायदा होगा, जो चाइना ड्रीम है वो बर्बाद हो जाएगा अगर आप ये अतिक्रमण बंद नहीं करें। दूसरा, जो चाइना के लोग हैं, जिसको आपने कहा कि चाइना के लोग इनोसेंट है, लेकिन उनकी जो सीसीपी पीएलए है, चाइना के लोगों को आपका क्या मैसेज है? अत्याचार सहने वाला उतना ही बड़ा जिम्मेवार होता है जितना अत्याचार करने वाला। अगर आप अपने सीसीपी को, अपने लीडर को अगर आप नहीं रोक पाए, तो आपका हाल वही होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हुआ था, क्योंकि वो लोग भी अपने लीडर हिटलर को नहीं रोक पाए थे, और हिटलर ने जाके रशिया में अटैक कर दिया था, और उसके बाद जर्मनी की क्या हालत हुई ये पूरा विश्व जानता है, ये हिस्ट्री है। इसलिए आप लोग अपने लीडर को रोकिए। अगर आप अपने लीडर को और सीसीपी को नहीं रोकेंगे, इनका अतिक्रमण बढ़ता रहेगा, पूरा विश्व इकट्ठा हो जाएगा, और आपके दोस्त जो आप गिने चुने हैं वो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए ये बहुत खतरनाक मोड़ पे आप चल पड़े हैं। आप इसको अपने कदम जो है रोक लीजिए। जो हाल ही में हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो हैं, जो इनके विचार हैं, इनके बारे में सिर्फ 3 बड़े वाले प्रायोरिटी पॉइंट बताइए। मैं इनके विचार से पूरी तरीके से सहमत हूं। पूरी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को एक साथ सामने आना चाहिए। एक वक्त ऐसा आ गया है जब कुछ एक शासक ये चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड हमारे सामने झुके और हमारी बात को नकारे ना, और हम जो कुछ भी कहें सही या गलत उसकी हाँ में हाँ मिलाए और हमारी ही बात को रूल माना जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्री वर्ल्ड है। अगर हम इसको अभी नहीं रोका गया तो फ्री वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है
कि पूरे विश्व की डेमोक्रेसीज एक साथ आए और इस मौके पर पूरे विश्व की डेमोक्रेसीज को और फ्री वर्ल्ड को एक साथ आना चाहिए और जो अतिक्रमण फ्री वर्ल्ड के ऊपर, फ्री पैसेज के ऊपर हो रहे हैं, वो अतिक्रमण बंद होने चाहिए। जनरल अस्थाना, अगर आपके सामने में चारों जो क्वाड्स के नेवल कमांडर्स हैं खड़े हों तो आपको क्या एडवाइस होगी उनको? आप इस तरीके से एक्सरसाइज करके ऐसे संदेश इनको दे दीजिए चीन को कि भाई आप इतने सेफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी सप्लाई लाइन एकदम बंद हो सकती है और आपको उसी इलाके में जहां आप बोल रहे थे कि मेरी फर्स्ट आइलैंड चेन में मुझे यूएसए ने और सबने मुझे कंटेन कर दिया है, आप इतनी बुरी तरीके से कंटेन होंगे कि आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप साउथ चाइना सी तो भूल जाइए, आप ईस्टर्न सी बोर्ड से बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगे। जनरल अस्थाना, आपका प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश? ये एक मौका है जब चीन सबसे ज्यादा प्रेशर में है। इस मौके को हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केट नहीं होगा, ये गिदड़ भपकियां चलती रहेंगी चीन की। और इसको अगर हमें बंद करना है तो ये सही मौका है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। लंबा स्टैंड ऑफ भी अगर जरूरी है तो हमें करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन चीन को प्री स्टैंड ऑफ पोजीशन से पहले जहां वो थे वहां वापस जाना चाहिए। आपका भारत के यूथ को क्या मैसेज है? भारत के यूथ को मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोग भारत हैं, भारत आप में बसता है। मैं आप लोगों से बहुत ही ज्यादा उम्मीद करता हूं। मेरी जनरेशन ने, गुरमीत सिंह साहब की जनरेशन ने जो हिंदुस्तान हम जो आपको दे रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं और ये हमारा सपना है कि आप एक उससे बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे, उससे स्ट्रांग हिंदुस्तान बनाएंगे, उससे अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। और उसके लिए आप सबको ये यकीन करना पड़ेगा कि जो आपकी फ्रीडम है वो आपका राइट है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन है। आप जिस फील्ड में भी हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जिस चीज जगह पर आप काम कर रहे हैं, आप देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही देश हैं, आप ही इंडिया है, आप ही भारत हैं। और मेरे विचार से, जैसा कि मैं बोलता रहता हूं, आप भारत हैं, मैं भारत हूं, और आप सबके दिल में होना चाहिए कि मैं हूं भारत और मैं ही इस भारत की गौरव को बढ़ाऊंगा। कितना सुंदर से कहा है जनरल अस्थाना आपने। आपका क्या मैसेज है इंडियन आर्मी को? आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, हमें नाज है, हमें गर्व है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है इंडियन आर्मी के शौर्य को देखते हुए। और आज की डेट में लोग कहते रहते हैं जनरेशन बढ़ती जाती हैं, हमारी जो नई जनरेशन है वो हमसे भी ज्यादा प्रोफेशनल है, हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, और आप लोगों ने हमसे भी ज्यादा आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसी काम को करते रहिए, झुकिए मत, डरिए मत। और ये किसी भी हालत में चीन जो है ये 10 फीट चौड़ा नहीं है, और ये एक ऐसी आर्मी है जिसने एक पायलट जिसके अंदर ऐसा नहीं है जिसने कॉम्बैट देखा हो, एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने असली लड़ाई लड़ी हो। ये डंडों की लड़ाई तो मेरे विचार से सड़क के गुंडे लड़ते हैं, इनसे इनकी हमसे कोई मुलाकात नहीं है। और मेरे विचार से हम हर जगह, हर मौके पे, हर तरीके से सही जवाब देंगे। सही मौके का आप डिसाइड करेंगे, आप ग्राउंड पर हैं, आप डिसाइड कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। जनरल अस्थाना, हम दोनों ही असम रेजिमेंट के हैं। हमने जीवन में जो भी सीखा है वो अपने जवानों से, राइनों से सीखा है, अपने ऑफिसर से सीखा है, असम रेजिमेंट के ऑफिसर से, इंडियन आर्मी के ऑफिसर से सीखा है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हम दोनों के लिए एक ग्रेटिट्यूड देना। तो आपका असम रेजिमेंट को क्या मैसेज है? हम असम रेजिमेंट में पैदा हुए और यही ख्वाहिश है कि आंख भी बंद हो तो असम रेजिमेंट नहीं बंद हो। और इतना है कि असम रेजिमेंट ने ही हमें जो कुछ भी हम आज हम हैं वो बनाया। और अगर
इस दुनिया में कहीं पे सेक्युलरिज्म की बात कही जाती है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आसाम रेजिमेंट में हर किस्म के कास्ट, क्रीड, हम सब एक साथ बढ़ के एक फाइटिंग फोर्स बनाते हैं। और उस फाइटिंग फोर्स ने इतनी अच्छी ट्रेडिशंस हैं। लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले शायद पिछड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इतनी ज्यादा सांस्कृतिक गहराई है उनके अंदर कि कुछ कहने की हद नहीं है। और आसाम रेजिमेंट के अंदर जब एक रेजिमेंट में आ जाते हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जो जो ट्राइब्स आपस में लड़ती हैं, उन दोनों ट्राइब्स के लड़के हमारे पास जब सोल्जर बन के हमारे साथ में आते हैं, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है आसाम रेजिमेंट स्पिरिट के अंदर। तो ये आसाम रेजिमेंट जो है मेरे विचार से पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए सेक्युलरिज्म का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हर किस्म का लोग जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किस्म के लोग एक साथ एक फाइटिंग फोर्स बनाते हैं। और एक ऐसी फोर्स है जिसमें डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें जब भी दुर्गम परिस्थिति होती है, अपने लोगों को बताना पड़ता है। जब हाई ऑल्टीट्यूड में बर्फ में होते हैं, उनको बोलना पड़ता है यार गर्म कपड़े पहन लो, डरता तो कोई है ही नहीं। जब मैं याद है मुझे कारगिल के टाइम में जब बमबारी हुआ करती थी, हमने बंकर के अंदर टेबल टेनिस फिट किया हुआ था। हमारे जवान टेबल टेनिस खेला करते थे जब पाकिस्तान बमबारी कर रहा होता था। तो ये तो हमारे सोल्जर्स की हिम्मत है और ये हमारे सोल्जर्स की स्पिरिट है। तो इस बहादुरी के को अभी गुणगान करना मेरे विचार से इस छोटे से वक्त में बहुत कम होगा, लेकिन नमन है आसाम रेजिमेंट को और हमारी पूरी जिंदगी आसाम रेजिमेंट के लिए कुर्बान। खूब कहा जनरल अस्थाना आपने। देखिए, सैनिक का धर्म राष्ट्र है, उसका कर्म राष्ट्र है, और जो कुछ भी हमने सीखा है वो अपने जवानों से सीखा है। दे हैव बीन द बेस्ट टीचर्स ऑफ अस। और हमारी असम रेजिमेंट भारत की जो वीर गाथा है उसके अंदर में एक अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र और 5 वीर चक्र लिए हैं और 25 बटालियन हैं। गर्व है। और ये बहुत भावुक समय है कि जनरल अस्थाना आपके साथ में इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया। एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर फाउंडर मिस्टर विवेक मेहरा, would like to thank you for sparing your time and talking in so deliberately, and it shows the volumes, depth of your wisdom and your hard work and sincerity. My sincere thanks to you and gratitude. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much. In fact, it has been a great pleasure, and I would look forward. It was amazing speaking to everybody of the organization, and I think it couldn't have been better because you have brought out all kinds of feelings which one has for the nation and for everybody, for the youth and for the region and for the regiment as well. Jai Hind. Jai Hind.